Hello, good morning everyone. I hope you all are good and we energetic. So today we start next topics of chapter 3, current electricity. Find out the relation between drift velocity, mobility of the conductor, electric current, current density, electric field and potential difference. Suppose a conductor whose length L and area of cross section कैपिटल ए। हमने यहां पर एक कंडक्टर कंसीडर किया जिसकी लेंथ स्मॉल एल एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कैपिटल ए है। सो वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर V is equal to area of cross section into length. Suppose per unit volume number of free electron is small n. So total number of free electron of the conductor is NV. Per unit volume number of free electron is small n. So total number of free electron of the conductor is NV is equals to n, V की वैल्यू A into L। पर फ्री इलेक्ट्रॉन चार्ज स्मॉल e, सो टोटल चार्ज ऑफ द कंडक्टर is delta Q is equals to NaL into small e, and drift velocity Vd is equals to displacement upon time। तो displacement is small l upon time interval delta t। So time interval delta t is equals to L upon Bd। तो मैंने यहां पर जो कंडक्टर कंसीडर किया उस पर चार्ज फाइंड आउट किया और टाइम इंटरवल। सो इलेक्ट्रिक करंट I is equals to delta Q upon delta T। Put these value। So I is equals to delta Q की वैल्यू NaLe divided by delta T L upon Vd। L से L cancel out। So electric current I is equals to NaE Vd। तो एक रिलेशन फाइंड आउट हुआ। करंट डेंसिटी
current density J is equals to I upon A. So J is equals to I की वैल्यू NAE BD divided by A. A से A cancel out. So current density J is equals to NEVD. We know that drift velocity is equals to mu E. Here mu mobility of the conductor and capital E electric field. So electric current I is equals to NAE VD की वैल्यू पुट की म्यू ई. ये रिलेशन इलेक्ट्रिक करंट, मोबिलिटी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड के मिडिल में है. अगेन करंट डेंसिटी J is equals to I upon A. So J is equals to NAE mu E divided by A. A से A cancel. So J is equals to NE mu E. We know that electric field is equals to potential difference divided by length. So electric current I is equals to NAE mu V upon L, and current density J is equals to I upon A. तो J is equals to NAE mu V upon L into A. A से A cancel. So J is equals to NE mu V upon L. ये हमारे डिफरेंट रिलेशन हैं वेरिएबल फिजिकल क्वांटिटीज में. नेक्स्ट टॉपिक, व्हीटस्टोन ब्रिज. There are four resistances P, Q, R and S forming a closed bridge called Wheatstone bridge. यहाँ पर फोर रेजिस्टेंसेस P, Q, R and S को एक क्लोज्ड ब्रिज में कनेक्ट किया गया, जिसे हम व्हीटस्टोन ब्रिज कहते हैं. ए बैटरी इज कनेक्टेड अक्रॉस A and C. A और C पॉइंट के बीच एक बैटरी और की कनेक्ट की. While a galvanometer is connected between B and D points. एक गैल्वेनोमीटर को B और D पॉइंट्स के बीच कनेक्ट किया गया. At balancing there is no current in galvanometer. जब ये ब्रिज बैलेंसिंग कंडीशन में होगा उस समय BD पार्ट में कोई करंट फ्लो नहीं होगा. तो BD पार्ट में करंट फ्लो ना हो, इसके लिए B और D पॉइंट का पोटेंशियल सेम होना चाहिए. सपोज B पॉइंट का पोटेंशियल BB इज इक्वल टू D पॉइंट पोटेंशियल VD. तो जब पोटेंशियल एट पॉइंट B and D are equal, so potential difference delta V is equals to BB minus BD is equals to 0. So according to Ohm's law, potential difference is equals to current into resistance. So delta V 0 is equals to IR. इसका मतलब फ्लोइंग करंट और रेजिस्टेंस का जो प्रोडक्ट है वो जीरो होगा. और ये प्रोडक्ट जीरो तभी हो सकता है जब BD पार्ट में फ्लोइंग करंट और रेजिस्टेंस में से एक क्वांटिटी जीरो हो. और here R is equals to not zero, यानी जब यहां पर एक कनेक्टिंग वायर है, गैल्वेनोमीटर है, तो उसका अपना एक रेजिस्टेंस है. सो रेजिस्टेंस नॉट इक्वल्स टू जीरो, सो फ्लोइंग करंट I इज इक्वल्स टू जीरो. तो जब BD पार्ट में करंट फ्लो नहीं होगा उस समय ब्रिज बैलेंसिंग कंडीशन में होगा. इफ ब्रिज
bridge in balancing condition. Balancing condition. So according to Wheatstone bridge, P upon Q is equals to R upon S. So unknown resistance S is equals to Q upon P into R. यहां पर जो 4 रेजिस्टेंस कनेक्ट किए हैं किसी एक क्लोज्ड ब्रिज में, उसमें PQ इज नॉन रेजिस्टेंस, R इज नॉन एंड वेरिएबल रेजिस्टेंस एंड S इज अननोन रेजिस्टेंस. यहां 4 रेजिस्टेंसेस PQRS में P और Q जो रेजिस्टेंस है उसकी वैल्यू हमें गिवन है, R की वैल्यू गिवन और वेरिएबल है, रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हम चेंज कर सकते हैं, और S एक अननोन रेजिस्टेंस है जिसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है. सो अकॉर्डिंग टू व्हीटस्टोन ब्रिज, unknown resistance S is equals to Q upon P into R. Suppose potential at points A, B, C and D are VA, VB, VC and BD. हमने ऐसा कंसीडर किया कि ये जो 4 पॉइंट है A, B, C एंड D, इन पर पोटेंशियल की वैल्यू रेस्पेक्टिवली VA, VB, VC एंड BD. respectively. So in balancing condition, BB is equals to BD. बैलेंसिंग कंडीशन वाली जो कंडीशन है उस पर B पॉइंट और D पॉइंट का पोटेंशियल से, सो VA माइनस BB इज इक्वल टू VA माइनस BD. हमने यहां पर दोनों जगह VA लिखा. अब एक में से मैंने BB को माइनस किया और राइट हैंड साइड में VD माइनस किया, तो BB और BD ऑलरेडी इक्वल है. सो VA माइनस BB इज इक्वल टू VA माइनस BD, इक्वेशन फर्स्ट. एंड VB इज इक्वल टू VD ऑलरेडी इक्वल है. दोनों में से मैंने VC को सब्ट्रैक्ट किया. सो VB माइनस VC इज इक्वल टू VD माइनस VC, इक्वेशन सेकेंड. अकॉर्डिंग टू Ohm's law, VA माइनस BB यानी VA माइनस BB. अब यहां सपोज कीजिए बैटरी से करंट I फ्लो हुआ, A पॉइंट के बाद इधर करंट I1 और इधर करंट I2 दो पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट हुआ. BD पार्ट में करंट नहीं आएगा, सो सेम करंट I1 फ्लोइंग इन Q रेजिस्टेंस एंड I2 करंट फ्लोइंग टू रेजिस्टेंस S, और C पॉइंट पर टोटल करंट ऐड हुआ, सो फाइनल करंट I इज इक्वल टू I1 प्लस I2. अब यहां पर VA माइनस BB इज इक्वल टू I1P, यानी पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू करंट इनटू रेजिस्टेंस. तो मैंने यहां पर लिखा VA माइनस BB इज इक्वल टू I1P. सिमिलरली VA माइनस BD is equals to VA minus VD is equals to I2R. VB minus VC is equals to
I1Q and VD minus VC is equals to I2S. VD minus VC I2S. From equations first and second, VA minus VV यानी I1P equals to VA minus VD is equals to I2R, equation third, and VV minus VC is equals to I1Q equals to I2S, equation 4. Dividing equations third by fourth, so I1P divided by I1Q is equals to I2R divided by I2S. I2 I1 क्रॉस होंगे, सो P अपॉन Q is equals to R upon S. So unknown resistance S is equals to Q upon P into R. तो जो व्हीटस्टोन ब्रिज की थ्योरी थी वो थ्योरी हमने प्रूव कर ली. तो अगेन अकॉर्डिंग टू थ्योरी ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज, unknown resistance S is equals to Q upon P into R. Next topic, meter bridge. Meter bridge is the application of Wheatstone bridge is determine the unknown resistance of a given wire. जो मीटर ब्रिज है वो व्हीटस्टोन ब्रिज की थ्योरी पर वर्क करता है, यानी व्हीटस्टोन ब्रिज की थ्योरी का एक एप्लीकेशन है. और इस मीटर ब्रिज की हेल्प से किसी अननोन वायर का रेजिस्टेंस फाइंड आउट किया जा सकता है. इट इज constructed on the principle of Wheatstone bridge. So according to balanced Wheatstone bridge, P upon Q is equals to R upon S. So unknown resistance S is equals to Q upon P into R. Suppose this equation is first. अब हम बात करते हैं कंस्ट्रक्शन की. तो यहां पर लकड़ी का एक बोर्ड है और लकड़ी के इस बोर्ड पर पैरेलल एल शेप की दो पत्तियां लगा रखी हैं. तो एक यहां पर ये है, ये शेप है एल, और यहां पर दोनों किनारों पर हमें कनेक्शन करने के लिए स्विच लगे हुए हैं और ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल और सिमिलर हैं और दोनों के एंड पॉइंट पर दो स्क्रू लगे हुए हैं कनेक्शन के लिए. अब इस स्क्रू को नेम ए देते हैं, इसको सी देते हैं. इन दोनों के मिडिल में मैग्नीन का 1 मीटर लॉन्ग वायर है. मैग्नीन एक अलॉय है और ये वायर मैग्नीन का इसलिए है कि मैग्नीन की रेजिस्टिविटी हायर है और टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस इज लो. अब इस लकड़ी के बोर्ड के किनारे पर एक मीटर स्केल 1 मीटर लॉन्ग कनेक्ट है, जिस पर 1 सेंटीमीटर टू 100 सेंटीमीटर सिंबल दिए हुए हैं, जिससे कि हम लेंथ का मेजरमेंट कर सकें. और एक हमारी मेटल की जो पत्ती है वो इस मैग्नीन वायर के पैरेलल कनेक्ट है. इन पर भी पॉइंट है वायर को कनेक्ट करने के लिए. इस मिडिल वाले पॉइंट को हम डी बोलेंगे और यहां से हम एक गैल्वेनोमीटर कनेक्ट करेंगे और उसे हम एक जॉकी से कनेक्ट कर देंगे. इन दोनों पॉइंट के मिडिल में नॉन एंड वेरिएबल रेजिस्टेंस के लिए रेजिस्टेंस बॉक्स कनेक्ट करेंगे और इन दोनों स्पेस के मिडिल में अननोन रेजिस्टेंस, यानी वो वायर जिसका रेजिस्टेंस हमें एस फाइंड आउट करना है, वो कनेक्ट करेंगे. यहां पर ये जॉकी है. ए और सी के मिडिल में एक बैटरी और की को कनेक्ट कर देंगे. सपोज इस बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस V है और टर्मिनल पॉजिटिव टू नेगेटिव है.
तो अब ये हमारा जो स्ट्रक्चर बन के तैयार हुआ, ये व्हीटस्टोन ब्रिज को फॉलो करता है। व्हीटस्टोन ब्रिज में 4 रेजिस्टेंस है, पी, क्यू, आर और एस। यहां भी आर रेजिस्टेंस नॉन एंड वेरिएबल है और एस अननोन रेजिस्टेंस है। अब हम जब वर्किंग के अकॉर्डिंग देखेंगे कि जॉकी को किसी पर्टिकुलर आरवी रेजिस्टेंस बॉक्स में से रेजिस्टेंस आर के लिए जब हम जॉकी को मैग्नेट वायर पर प्लेस टू प्लेस टच कराते हैं तो एक पर्टिकुलर कोई पॉइंट बी आता है जहां पर गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन 0 होता है। जब गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन 0 होता है, इट मींस बीडी पार्ट में कोई करंट फ्लो नहीं होगा। उस समय ये ब्रिज बैलेंसिंग कंडीशन में होगी। सपोज AB की लेंथ L है तो L सेंटीमीटर लॉन्ग जो वायर है वो रेजिस्टेंस P है और रिमेनिंग लेंथ 100 माइनस L सेंटीमीटर का जो रेजिस्टेंस होगा वो Q है। तो अब यहां पर P, Q, R, S 2 रेजिस्टेंस है। हियर P, Q नॉन रेजिस्टेंस, R नॉन एंड वेरिएबल रेजिस्टेंस और S अननोन रेजिस्टेंस। हम इस बैटरी से कोई करंट फ्लो करेंगे I, जो A पर जाने के बाद P में I बन जाएगा और ये स्ट्रिंग से होकर RB में I2 जाएगा। वही रेजिस्टेंस S में सेम I2 जाएगा और जो रेजिस्टेंस P में गया I1 वही रेजिस्टेंस Q में जाएगा और यहां C पर आकर दोनों करंट कनेक्ट होके टोटल करंट आई जो बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल तक आएगा। सपोज रेजिस्टेंस ऑफ सपोज पर सेंटीमीटर resistance of magnet wire is rho. So resistance of P is equals to L rho, यानी P की जो लेंथ है वो L है और पर सेंटीमीटर रेजिस्टेंस रो। सो रेजिस्टेंस ऑफ P is equals to L rho and resistance S is equals to 100 minus L into rho. Put the values of P and Q in इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन जो फर्स्ट था उसमें P और Q की वैल्यू पुट करेंगे। सो S इज इक्वल टू Q की वैल्यू 100 माइनस L इंटू रो डिवाइडेड बाई P की वैल्यू L इंटू रो और इंटू R। यहां रो से रो कैंसिल हो जाएगा। सो S इज इक्वल टू 100 माइनस L अपॉन L इंटू R। इस फॉर्मूले से मीटर ब्रिज की हेल्प से जो गिवन वायर होगा उसका हम रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर लेंगे। वर्किंग में हम आरवी में से किसी पर्टिकुलर रेजिस्टेंस के लिए जॉकी को मैग्नेट वायर पर A टू C प्लेस टू प्लेस टच करा के नल पॉइंट फाइंड आउट करेंगे। उस समय ये बैलेंसिंग कंडीशन में होगा ब्रिज। उस समय जो हमारी लेंथ है वो हमें इस स्केल के हेल्प से फाइंड आउट होगी और वो वैल्यू इस फॉर्मूले में पुट करेंगे L एंड R और हमें अननोन वायर का रेजिस्टेंस फाइंड आउट हो जाएगा। थैंक्स।